हेलो गाइस, मेरे पापा ने नया ब्लॉग खोला है। आप लोग इन पे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, बाय बाय। मेरे पापा एडवोकेट हैं। ओके। I am Advocate Gaurav Kumar Gupta, MBA and Chartered Accountant and CA qualified. I am explaining the CA final students के लिए very important topic merger and acquisition. मर्जर एक्विजिशन मीन्स होता है जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वाइप आउट हो गया, वो ख़त्म हो गया, उसको कहते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। जैसे सत्यम कंपनी जो स्कैम हुई थी, महिंद्रा में जाके रातों विलय हो गई थी, एब्जॉर्वेशन हो गई थी, वो अपना अस्तित्व को ख़त्म कर ली और रियलाइजेशन अकाउंट में वो जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको रातें ट्रांसफ़र कर ले। इसी को कहते हैं मर्जर एक्विजिशन के स्थिति में आना, जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है। मर्जर एक्विजिशन मीन्स होता है देयर इज नो मोर ड्रामेटिक एंड कंट्रोवर्शियल एक्टिविटी इन कॉर्पोरेट फाइनेंस देन द एक्विजिशन ऑफ वन फर्म्स बाय अनदर, द मर्जर ऑफ टू फर्म्स। जब हम कोई फर्म्स the address to basic questions: why does firm choose the merger with acquire another firm? How does it happens? The acquisition of one firm by another is of course an investment made under the uncertain. The basic principle of valuation applies. A firm should be acquired if they generates a positive net present value to the shareholder of acquiring firms. However, इस प्रकार because the NPV net present value of an acquisition candidate is very difficult to determine. Merger and acquisition are interesting topic in their own rights. Here are some of the special feature of this area of finance. यह फाइनेंस का एरिया माना जाता है। The benefits from acquisition are called synergies. It's hard and estimate synergies using discounted cash flow techniques. They are complex accounting, tax, legal effects when one firm acquiring by another. Acquisition are an important control device shareholders. It appears that some acquisition are consequence of underlying conflict between the interest of exist merger of an of shareholder. Acquisition by another firm is one way that shareholders can remove manager with whom they are unhappy. Acquisitions analysis frequently focus on the total value of the firms involved, but usually an acquisition will affect the relative value of a stock and bonds well as their total value. Merger acquisitions sometimes involve unfriendly transactions. Thus, when one firm attempts to acquire another, it does not always involve quit gentlemanly negotiation. The south of the firm may use the defensive tactics, including the poisons, pills, green mails, and the white knights. This chapter starts by introducing the basic legal accounting and tax aspect of acquisitions. When one firm acquires another, it must choose the legal framework, the accounting method and tax status. These choice will be explained throughout the chapter. The chapter discusses how to determine the NPV, net present value of an acquisition candidate. The NPV of an acquisition candidate, it is the difference between the synergy for merger and the premium to paid. We consider the following types of synergy: revenue enhancement, cost reductions, lower tax, lower cost of capital. The premium paid for an acquisition is price paid minus the market value of the acquisition prior to the merger. The premium depends on whether cash or security are used to finance the offer price. The basic form of acquisition. There are three basic legal procedures that one firm can use to acquire another firm: merger और कंसोलिडेट। मर्जर को हम कंसोलिडेटेड भी कहते हैं। एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्जर माने
उसका डिस्पोजल हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो अपने आप को पूर्णतः खत्म कर ली कंपनी, जिसको कहते हैं मर्जर, आपस में विलय हो जाना। एक्विजिशन मीन्स एक्विजिशन ऑफ स्टॉक का एक्विजिशन करना, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का एक्विजिशन करना, एक एसेट्स को दूसरे एसेट्स में ट्रांसफ़र करना है। अपने लायबिलिटी एसेट्स जितने हैं वो कंपनी में, जैसे सत्यम कंपनी है बैंकरप्ट हुई तो वो महिंद्रा में जाके एब्जॉर्बर्सन हो गए, एक्विजिशन हो गए, विलय हो गए। वो अपने एसेट्स, संपत्ति जितने भी एसेट्स, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, सबको वो सेल कर दी और वह डिस्पोजल हो गई। मर्जर और कंसोलिडेशन। A merger refer to the absorption of one firm by another. The acquiring firm retain its name and its identity. It's acquired all of the assets and liabilities of the acquired firms. After a merger के बाद क्या होता है? The acquired firm cases to exist a separate business entity. Acquired firm जो हुआ उसका एक business entity क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। Consolidated in the same merger except that इंटरली न्यू फॉर्म इज क्रिएटेड इन ए कंसोलिडेटेड। इस प्रकार से वह एक नया फॉर्म फिर से एस्टेब्लिश करता है नए नाम से। बोथ एक्वायरिंग फॉर्म एंड द, जैसे सत्यम कंपनी महिंद्रा में विलय हो गई और सत्यम का जितना भी एसेट्स लायबिलिटी था वो महिंद्रा के नाम से वो एब्जॉर्ब हो गई, उसमें जाकर वो विलय हो गई। आफ्टर मर्जर द एक्वायर्ड फॉर्म केसेस एग्जिस्ट द सेपरेट बिजनेस एंटिटी। A consolidated is the same as merger except that an entirely new firm is created in a consolidation. Both the acquiring firm and acquiring firm terminate their previous legal existence and become part of new firms. In a consolidation, the distinction between the acquired firm is not important. However, the rules for mergers and consolidations are basically the same. Acquisition by merger and consolidation result in combination of the assets and liabilities acquired and acquired firms. Suppose firm A acquired firm B in a merger. A acquired firm B, A ने B से फॉर्म के लिए एक्वायर्ड किया और मर्जर हुआ। फर्दर सपोज फॉर्म B shareholders are given 1 share of firm A's stocks in exchange for 2 share of firm B stocks. From a legal standpoint, firm A's shareholders are not directly affected by the merger. However, इस प्रकार firm B shares cases to exist in a consolidation. The shareholders of firms A and firm B would exchange their share for the share of a new firms. Because a difference between merger and consolidation are not all that important for our purpose, we shall refer to both type of recognitions as merger. There are some advantage and some disadvantage to using the merger to acquire a firm. A merger is legally straightforward. A merger is legally straightforward, does not cost as much as other form of acquisition. It avoids the necessity of transferring title each individual assets of acquired firm to acquiring firms. A merger must be approved by a board of to say stakeholder of each firm. एक मर्जर के समय जितने भी फॉर्म्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको स्टेक होल्डर्स के बोर्ड द्वारा अप्रूवल होना चाहिए। टिपिकली boards on the owners of 2/3 of the share are required for approval. In addition, shareholder of acquired firm have appraisal rights. This means that they can demand that their share be purchased at a fair value by the acquiring firm. Often the acquiring firm, the dissenting shareholder acquired firm cannot agree to fair value, which result in expensive legal proceeding. जो स्टेक होल्डर का जो एक्वायरिंग प्रोसीडिंग होता है वो लीगली नहीं माना जाता है, इससे फेयर वैल्यू पर एग्री नहीं होता है। इसके लिए हमको लीगल प्रोसीडिंग एक्सपेंसिस करना पड़ेगा। एक्विजिशन ऑफ स्टॉक्स का एक्विजिशन करना। सेकेंड वे में मर्जर के सेंस में तो फर्स्ट वे हो गया, सेकेंड में एक्विजिशन स्टॉक्स का एक्विजिशन होता है। फर्स्ट में मर्जर और कंसोलिडेशन होता है, सेकेंड में एक्विजिशन ऑफ स्टॉक्स। ए सेकेंड वे टू एक्वायर another form is to purchase the firms voting stock in exchange for cash. अब जैसे माने कि स्टॉक को हम कैश में कन्वर्ट कर दिए, स्टॉक्स को शेयर में कन्वर्ट कर दिए, अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिए, डिवेंचर होल्डर में कन्वर्ट कर दिए। दिस में स्टार्ट द प्राइवेट ऑफर
from the management of one firm to another. At some point, the offers is taken directly to the selling firm's stockholder. This can be accomplished. Accomplished means होता है एक दूसरे का सहायता करना. बाय यूज फॉर टेंडर ऑफर. आपके पास टेंडर ऑफर आया, मार्केट प्राइस बूम कर गया. इस सिचुएशन में मर्जर एक्विजिशन में एकम्प्लिश होता है, एक दूसरे को एकम्प्लिश किया जाता है. ए टेंडर ऑफर इज ए पब्लिक ऑफर बाय शेयर ऑफ टारगेट फॉर्म्स. यह फॉर्म्स का टारगेट होता है, शेयर का टारगेट होता है. जो शेयर को हम खरीदते हैं या ऑफर करते हैं उसका एक टारगेट फॉर्म होता है. इट इज मेड बाय वन फॉर्म डायरेक्टली टू द शेयर होल्डर ऑफ अनदर फॉर्म. The offer is communicate to the target firm shareholder by public announcement such a newspaper advertisement. अब से न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करते हैं. Sometimes a general mailing is used in a tender offer. However, a general mailing in very difficult because it requires the name and address of the stockholder of record which are not usually available. स्टॉक होल्डर के जो होते हैं उसके एड्रेस अवेलेबल नहीं होते हैं. The following are the factors choosing between an acquisition of a stock and merger. In an acquisition of a stocks, no shareholder meetings must be held to not voting required. If the shareholder of the target firm do not like the offer, they are not required to accept it. They will not tender their share. In an acquisition of a stocks, the bidding firms can deal directly with the shareholder of a target firm using the tender offer. The target firm management and board of director can be bypassed. Acquisition of a stock is often unfriendly. एक्विजिशन ऑफ स्टॉक्स का जब एक्विजिशन करते हैं वो अनफ्रेंडली रूप से प्राय माना जाता है. इट इज़ द यूज इन इफॉर्ट्स टू circumvent the target firm's management, which is usually activity resisting acquisition. Resistance by the target firm's management often makes the cost acquisitions by stock higher than the cost by merger. जब हमें स्टॉक्स हायर होगा तो मर्जर द्वारा हम लागत को एक्वायर करते हैं. फ्रीक्वेंटली मीन्स लगातार. फ्रीक्वेंटली मीन्स लगातार. ए minority of shareholders will hold out in tender offer and thus the target firm cannot be completely absorbed. Complete absorption one forms by another requires a merger. Many acquisition of a stock end with the formal merger later. Acquisition of asset. फिर स्टॉक का हो गया. अब एसेट्स का एक्विजिशन होता है. मर्जर एक्विजिशन में क्या होता है? एसेट्स का एक्विजिशन करना माने एसेट्स को एक कंपनी से दूसरे कंपनी में एब्जॉर्ब करना. वन फॉर्म्स कैन एक्वायर्ड अनदर फॉर्म बाय बाइंग ऑल ऑफ इट्स एसेट. उसके बाद वो अनदर फॉर्म जो है उसको एक्वायर कर सकते हैं और उसके एसेट्स को सभी एसेट्स को क्या करते हैं? खरीद लेते हैं. ए फॉर्मल वोट ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द सेलिंग फॉर्म इज रिक्वायर्ड. और जो शेयर होल्डर्स के जो फॉर्मल वोटर होते हैं, वेटर होल्डर होते हैं, वो उसे रिक्वायर करते हैं. उसके उस फॉर्म को बेचने में आवश्यकता देते हैं और रिक्वायर करते हैं. दिस अप्रोच टू एक्विजिशन विल अवॉइड द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ हैविंग माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर विच कैन अकर in acquisition of stocks. Acquisition of assets involve transferring title to assets. The legal process of transferring assets can be costly. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिम. मर्जर एक्विजिशन में क्या होता है? फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैव बीन टिपिकल क्लासिफाई एक्विजिशन इनटू 3 टाइप्स. हॉरिजेंटल एक्विजिशन होता है. हॉरिजेंटल मीन्स होता है जो कंपनी मर गई, जिसको जिंदा नहीं कर सकते, हॉरिजेंटल पोजीशन में आ गई. वर्टिकल को एक्विजिशन में उसका भी सांस चल रहा है, उसका धड़कन चल रहा है, वो बीमार है, वो वर्टिकल पोजीशन में है वो कंपनी. एक्विजिशन कॉन्जोलमेरेट एक्विजिशन में क्या होता है? द एक्वायरिंग फर्म एंड एक्वायरिंग फर्म आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. द एक्विजिशन ऑफ फूड प्रोडक्ट फ्रॉम कंप्यूटर फर्म वुड बी कंसिडर द कॉन्जोलमेरेट एक्विजिशन. वर्टिकल एक्विजिशन में होता है वर्टिकल एक्विजिशन इन्वॉल्व द फॉर्म डिफरेंट स्टेप्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस. द एक्विजिशन बाय एयरलाइंस company and travel agency would be vertical acquisition. Horizontal acquisition में this is acquisition is a forms is a same industry and जो भी कंपनी का बैलेंस शीट होता है वो हॉरिजेंटल फॉर्म में भी होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है. जैसे बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो उसका जो अकाउंटिंग पोजीशन होता है वो वर्टिकल पोजीशन में भी होता है, हॉरिजेंटल में. हॉरिजेंटल का मतलब हुआ कि कंपनी का मर्जर एक्विजिशन में चली गई. कंपनी अपने एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को जितने भी है वो अदर कंपनी में
राते राते जाकर विलय हो गई या एब्जॉर्बेशन हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे माने एक्स कंपनी ने वाई कंपनी में जाकर विलय हो गया, जैसे सत्यम कंपनी ने महिंद्रा कंपनी में आकर विलय हो गया। मर्जर, मर्जर का मतलब मर्जर, कंपनी मर गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई, वाइप आउट हो गई। एक्विजिशन हो गई, उसका पूरा ट्रांसफ़र हो गया, उसके पूरे एसेट्स लायबिलिटीज़ है वो दूसरे कंपनी में, और वो अपने नाम से एक नई कंपनी बनाई और उसे फिर एस्टेब्लिश की। उसके बाद आता है ए नोट ऑफ टेक ओवर एक्शन। ये स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ए नोट ऑन टेक ओवर एक्शन अमेरिकन इंस्टीट्यूट में भी कहा गया है, एकोनॉमिक्स अकाउंटिंग सिस्टम में भी कहा गया है। जब मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें टेक ओवर इज ए जनरल एंड imperative term referring the transfer control of firms from the one group of shareholder another. A firm has to decide to take over another firm is usually referred to the bidder. The bidder offer to pay cash security to obtain the stock assets another company. If offer accept, the target firm will give up control over its stock assets is bidder exchange for consideration is a stock it डेप्ट और कैश। स्टॉक में हम क्या शामिल करते हैं, डेप्ट और कैश को। सर फॉर एग्जाम्पल मान लें कि व्हेन ए बिडिंग फर्म एक्वायर्ड ए टारगेट फर्म्स द राइट टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द टारगेट फर्म इज द ट्रांसफर टू न्यूली इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एक्वायरिंग फर्म। इट इज द टेक ओवर बाई एक्विजिशन। न्यूली डायरेक्टर जो होते हैं उसको एक्विजिशन में ट्रांसफर, जैसे मर्जर और कंसोलिडेशन। मर्जर क्या, एक कंसोलिडेशन हो जाना। एक्विजिशंस क्या, एक्विजिशन ऑफ स्टॉक्स का एक्विजिशन करना, एसेट्स का एक्विजिशन करना। फिर टेक ओवर में क्या लेते हैं, एक्विजिशंस को रखते हैं। प्रोक्सी कंटेस्ट होता है, गोइंग प्राइवेट है। प्रोक्सी कंटेस्ट में क्या होता है, जब हम कभी भी कंपनी का शेयर होल्डर मीटिंग्स होता है, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया जाता है कंपनी में, तो उसमें प्रोक्सी को बोलने का अधिकार नहीं है। प्रोक्सी उसमें साइलेंट रहता है। शेयर होल्डर्स, यदि शेयर होल्डर नहीं आ रहे हैं मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें प्रोक्सी को राइट दिया जाता है बोलने का। उस समय प्रोक्सी बोल सकता है। लेकिन शेयर होल्डर मीटिंग हो रही है, उसमें शेयर होल्डर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनमें प्रोक्सी को राइट नहीं दिया जाता है, राइट ऑफ इजमेंट ट्रांसफर नहीं किया जाता है। मर्जर एक्विजिशन में भी यही बात होता है। अब आते हैं, इफ टेक ओवर द अचीव द एक्विजिशन इट विल बी मर्जर टेंडर ऑफर फॉर शेयर ऑफ स्टॉक और परचेज एसेट्स इज मर्जर टेंडर ऑफर द एक्वायरिंग फर्म बाइंग द वोटिंग कॉमन स्टॉक फॉर एक्वायर्ड फर्म्स। Takeover can occur with proxy contest. Proxy contest occur when a group of shareholder attempts to gain controlling seats on the board of director by voting a new director. A proxy authorize the proxy holder vote all matters in a shareholders meeting. In the proxy contest, proxy from rest of the shareholders of society by influence group of shareholder. यही चीज़ है सेम जो चीज़ हमने बताया है कि प्रोक्सी को शेयर होल्डर मीटिंग में बोलने का राइट कब दिया जाता है, जब शेयर होल्डर ऑलरेडी नहीं है, उसके एब्सेंट में, शेयर होल्डर के एब्सेंट में प्रोक्सी को एनुअल जनरल मीटिंग में बोलने का राइट है। इन गोइंग प्राइवेट ट्रांजैक्शन ऑल इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक फर्म्स परचेज बाय ए स्मॉल ग्रुप इन्वेस्टर। द ग्रुप यूजुअली इंक्लूडेड इन ग्रुप मैनेजमेंट सम आउटसाइडर इन्वेस्टर। आउटसाइडर इन्वेस्टर में क्रिएटर हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गया, ये सब आउटसाइडर पार्टी है। पहले कंपनी किसको पेमेंट करेगी, यदि मर्जर एक्विजिशन होगा तो रिसीवर बहाल होगा, कोर्ट से रिसीवर बहाल करेंगे। उस सिचुएशन में कंपनी की लिक्विडेटर बहाल होता है या रिसीवर बहाल होता है। उस सिचुएशन में लिक्विडेटर क्या करती है, वो पूरे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के कंपनी को बेचकर और जितने भी पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम क्रेडिटर को पेमेंट करें, उसके बाद जितने भी आउटसाइडर पार्टी है उसका पेमेंट किया जाता है। इन गोइंग प्राइवेट ट्रांजैक्शन ऑल इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक फर्म्स आर परचेज। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पेमेंट करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मर्जर एक्विजिशन के समय, जब कंपनी दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, इस सिचुएशन में सबसे लास्ट में हम इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पेमेंट करते हैं। In going private transaction, all the equity share of the public firms are purchased by a small group of investors. The group usually included member of incumbent management, some outside investor. The share of the firm is delisted from stock exchange and they can longer purchase to open market. और ओपन मार्केट में शेयर का लॉन्गर परचेज किया जाता है, एक गुच्छा खरीदा जाता है। दिस इज द वाइप आउट ऑफ द मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन में गुडविल का भी ट्रीटमेंट होता है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल
गुडविल का ट्रीटमेंट ऑलरेडी मर्जर एक्विजिशन में ही होता है। जितनी भी कंपनी यदि बैलेंस शीट में गुडविल को ट्रीटमेंट कर रही है, वो दिखा रही है, इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे वो मर्जर एक्विजिशन के ही समय किया जाता है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुडविल का ट्रीटमेंट मर्जर एक्विजिशन के समय ही किया जाएगा, न कि अदर आइटम के समय। मान लें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। गुडविल पार्टनरशिप अकाउंटेंसी में भी जब पार्टनर रिटायर करते हैं, अपनी पार्टनरशिप बिजनेस डिजॉल्व हो गई, या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर में को ख़त्म कर रहे हैं, या स्लीपिंग पार्टनर है, इस सिचुएशन में गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। और कंपनी के समय मर्जर एक्विजिशन के समय ही गुडविल का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दैट्स ऑल। This is the main point of the merger and acquisition. Merger acquisition is the very important topic of the CA final and chartered financial analyst and cost worker accountant analyst. All sector, all finances, hardcore finance पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप फाइनेंस माना जाता है, जिसपे टॉप मैनेजमेंट पे बड़े बड़े फाइनेंसर रहते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर। फाइनेंस में सबसे टॉप पढ़ाई, सबसे हार्ड एंड फास्ट, सबसे कठिन हार्डकोर फाइनेंस कोर्स कहा जाता है, जो 38 आवर्स कंटिन्यू इसका एग्जामिनेशन होता है, जिसको कहते हैं हार्ड कोर फाइनेंस, जिसको कहते हैं चार्टर फाइनेंस एनालिसिस्ट। दिस इज द जहाँ से अकाउंटिंग सोचना बंद करता है, जहाँ से टोटल चार्टर अकाउंटेंसी सोचना बंद करता है, वहाँ से फाइनेंस स्टार्ट होता है। फाइनेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। This is the acquisition, and merger acquisition is the very important part of finance. That's all.